it is secreted by the glands present over here. There are going to be these glands present over here, which are going to secrete that wax-like thing, which is the sebum. These glands are the ceruminous glands. Ceruminous glands. They secrete sebum. These are modified sweat glands. ये sebum secrete करते हैं, which is a wax-like substance जो हमको हमारे external ear में यहाँ पे मिलता है. If we put our hand inside our ear, you will see that sebum is there. Alright? So जितना dust particles यहाँ पे enter होते हैं, उतना ज़्यादा sebum secrete होता है because it does not allow the dust particles to go and accumulate over here on this tympanic membrane. ड्रम के सरफेस पे अगर डस्ट पार्टिकल्स पूरी अक्यूमुलेट हो जाएगी तो ड्रम उतना अच्छे से नहीं बजेगा. इसको इमेजिन करके देखो, जब आप कोई ड्रम बजा रहे हो बाहर, हमारे फेस्टिवल्स में जब हम ड्रम बजाते हैं, अगर ड्रम के सरफेस पे पूरी एक लेयर है मट्टी की, तो ड्रम उतना अच्छे से वाइब्रेट नहीं होगा. So these glands over here, they are going to remove any dust particles which are entering the ear so that they don't accumulate on the tympanic membrane. Because हम तो यहाँ से कुछ डाल के tympanic membrane को clean नहीं कर सकते on a routine basis. So someone is going to do this job for us. They are going to remove these dust particles so that ये passage clear रहे और ये drum का membrane clear रहे. Drum should not have accumulation of dust particles. So now again, the ear will be made up of three parts. The first will be the external ear. External ear will be made up of these three parts. One is the external pinna. Second is the external auditory canal or the external auditory meatus. And the third is this tympanic membrane. इसमें से ड्रम लाइक स्ट्रक्चर है tympanic membrane. ये connective tissue रहेगा which is sandwiched between the skin and the mucous membrane. You have this external auditory canal which is going to carry the sound waves from your pinna towards this drum, और ये drum vibrate करेगा. Okay? अब imagine करके देखो, अगर हमको sound को focus करना है किसी चीज़ में, तो हम उसको हमेशा narrow चीज़ में focus करेंगे. अगर हम उसको एक wide चीज़ में focus करेंगे, तो वो haphazard इधर उधर spread हो जाएगा. तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटिस जो है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल जो है, वो यही चीज़ करता है कि साउंड को लेके जाके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे फोकस करता है. इट विल टेक द साउंड एंड फोकस इट ऑन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन so that the tympanic membrane vibrates. Sure. So this is the first part. You will write these three parts of the external ear. First is the pinna, second is the external auditory meatus, and third is the tympanic membrane. Now you will write that this pinna is going to be made up of elastic cartilage. This is not movable. ये मूव नहीं होता है, इसके फ्लैप्स मूव नहीं होते हैं जैसे डॉग्स में होते हैं. Pinna is going to be the first thing which is going to receive the sound waves. लिखो वो pinna के साथ. It's going to be the first thing which will receive the sound waves. After the pinna, the sound waves will travel into the external auditory meatus. And external auditory meatus के बाद वाला जो structure होगा, वो होगा tympanic membrane, which is the eardrum. Tympanic membrane is also called the eardrum. There are going to be ceruminous glands present over here which secrete sebum. These are modified sweat glands. ये dust particles को trap करते हैं, cleaning करते हैं ये पूरे canal का और tympanic membrane का, so that no dust is accumulated over here on them. No dust should be accumulated over here. So these are parts of the external ear. Now we are going to draw the middle ear. The second part from the three parts is the middle ear. So now we will do middle ear.
डू यू नो द बोन्स ऑफ द ईयर? ईयर में कौन से बोन्स प्रेजेंट रहते हैं? Malleus, incus, stapes. Yes. Malleus, incus, stapes. Very good. So middle ear is going to have those bones. Middle ear is going to be again an air-filled cavity which is going to have the three bones, malleus, incus and stapes. Now I will start from here. This was my eardrum. यहाँ पे मेरा external ear complete होगा. So from the eardrum, I'm going to have my first structure which is going to be like this. My second structure which is going to be like this. And my third structure which is going to be like this. आप मुझे बताओ कि ये तीन structures क्या हैं? This is malleus, this is incus and this is stapes. लिखेंगे malleus, लिखेंगे incus, लिखेंगे stapes. Which is the smallest bone amongst these? Stapes, yes. Stapes is the smallest bone in the human body. So stapes is smallest amongst these also. Malleus is hammer shaped. Hammer की जो shape होती है, देखो मैंने ऐसा बनाया है malleus. See. Malleus is hammer shaped. Incus is anvil shaped. What is an anvil? जो हमारा मोची लेके बैठता है, ऐसे टाइप का इंस्ट्रूमेंट उसके पास जूते बनाने के लिए. इफ यू हैव सीन, मोची के पास ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जिस पे रख के वो जूतों की स्टिचिंग करता है. दिस इज एनविल शेप्ड. एंड स्टेप्स इज स्टायरअप शेप्ड. व्हाट इज अ स्टायरअप? हथकड़ी. ये देखो, हथकड़ी लगाते हैं ना जो, हथकड़ी. If you want, do it a proportionate triangle. So stirrup is just like your hathkadi. We have seen in serials, police wala khol ke lagata hai. That thing is the stirrup shape. Stapes is stirrup shaped. Incus is anvil shaped. Malleus is hammer shaped. इसको कैसे याद रखेंगे? You will write miss and you will write has. Miss has, malleus hammer shaped, incus anvil shaped, stapes stirrup shaped. Miss has. Total how many bones, total how many malleus रहेंगे हमारे बॉडी में? Yes, you got that catch. एक ईयर में एक malleus रहेगा. But then we have 2 ears. So 2 malleus, 2 incus, 2 stapes. टोटल ईयर बोन्स पूछा तो कितने होंगे? 6. और एक ईयर में पूछा तो कितने होंगे? 3. एक ईयर में 3. Malleus, incus, stapes. My next MCQ is which ear bone, इसको ossicle भी बोलते हैं. They are also called ear ossicles. Ossicles means bony structures. Ossicles. So one ear is going to have 3 ear ossicles. Now you tell me which ossicle is attached to the external ear? Malleus. And which ossicle will be attached to the internal ear? यहाँ से मेरा internal ear start होने वाला है. Stapes. Yes. So MCQ. Arrange from outer to inner. Malleus, incus, stape को outer से inner arrange करो. बोलो. Malleus, incus and stapes. Yes. Ma'am, inner to outer ना? Outer to inner. Outer to inner. ये external आ रहा है ना मेरा? Malleus, incus, stapes. आउटर टू इनर यही अरेंजमेंट है ना जो ड्रॉ किया है मैंने.
Malleus incus stapes. Which is hammer shaped? Malleus. Which is anvil shaped? Malleus. Incus. Incus. Malleus. Which is stirrup shaped? Steps. Steps. Incus. All right. ऐसे MCQs आते हैं. Which ear ossicle is close to the eardrum? Malleus. 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 Which is close to the internal ear or my inner ear? Steps. Stapes. Yes. Staples. Yes. Now the joint, because these are bones, there is going to be a joint between the malleus and the incus, and there is going to be a joint between the incus and the stapes. These are bones, so these bones are going to be attached by joints, and these joints are going to be movable joints. By saying movable joints, मैं इनको कौन सी कैटेगरी में डालूंगी? एम्फीआर्थ्रोसिस, डायआर्थ्रोसिस और सिनआर्थ्रोसिस. Synarthrosis. नो, सिनआर्थ्रोसिस. सिनआर्थ्रोसिस क्या होता है बेटा? फ्यूज्ड जॉइंट्स, जो हमारे सूचर्स होते हैं. एम्फीआर्थ्रोसिस इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड डायआर्थ्रोसिस इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स. भूल गए हो ये क्लासिफिकेशन? Synarthrosis, amphiarthrosis, diarthrosis. Okay, this is there in the NCERT textbook. So ये हो जाएंगे. Diarthrosis, joint between malleus and incus is hinge joint, and joint between incus and stapes is ball and socket joint. अब आप मुझे बताओगे इसमें से मल्टी एक्शियल कौन सा है और यूनी एक्शियल कौन सा है? Ma'am, hinge uniangular and ball and socket multiangular. Yes. आपके एल्बो को ओपन क्लोज फ्लेक्शन एक्सटेंशन करके देखो, दैट इज योर हिंज जॉइंट यूनिएक्शियल. एंड आपके हाथ को पूरा रोटेट करके देखो फ्रॉम योर शोल्डर लेवल, दैट इज योर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सो जॉइंट बिटवीन मेलियस एंड इनकस इज हिंज जॉइंट, बिटवीन द इनकस एंड स्टेप्स इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. कैसे याद रखेंगे? M और I. ओके, ये हिंज में ये I आ रहा है, so we will remember that between malleus and incus it is going to be a hinge joint, and between incus and stapes it's going to be a ball and socket joint. MCQs again over here कि कौन से, और ये दोनों कौन से टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं? दे आर मूवेबल टाइप ऑफ जॉइंट्स. दे आर मूवेबल जॉइंट्स. अगर ये मूवेबल जॉइंट्स हैं तो इनको हम डायआर्थ्रोसिस भी बोलते हैं. डायआर्थ्रोसिस. चलो, तो 3 बोन्स हैं, 3 ऑसिकल्स हैं, और जॉइंट्स कितने हैं? 2 जॉइंट्स. MCQ. 3 ऑसिकल, 2 जॉइंट्स. MCQ. तीनों ऑसिकल्स का शेप आपको पता होना चाहिए. तीनों ऑसिकल्स के बीच का जॉइंट आपको पता होना चाहिए. आउटर टू इनर उसका अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए. Which is going to be attached over here to the eardrum and which is going to be attached to the internal ear. Now the middle ear is also going to be an air-filled cavity. लेकिन यहाँ से ये मेरा middle ear यहाँ से चालू हो रहा है. ओके, यहाँ से एक और चीज़ आएगी. ये मेरी यहाँ तक पूरा मेरा मिडिल ईयर है. ऑल दीज 3 बोन्स. यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ईयर को कनेक्ट करेगा फैरिंग्स से. दिस विल गो टू द फैरिंग्स. आई विल रब द डायग्राम टू मेक इट बिट क्लियर. All right, see, this is my middle ear cavity. चालू हो रहा है मेलियस से, ख़त्म हो रहा है स्टेप्स पे. This is my middle ear. This is going to be an air-filled cavity. External ear भी air-filled cavity थी. यहाँ से एक ट्यूब जाएगा नीचे
pharynx को. Who will tell me why? Why is this internal arrangement made? That And यहाँ because से the ear, nose, and throat are connected. ear, nose and throat are connected. Okay. The pressure. Yes. कभी अगर यहाँ से एक्सटर्नल ईयर से बहुत ज़्यादा साउंड आ जा रहा है तो ये मेम्ब्रेन फटनी नहीं चाहिए, ईयर ड्रम ये बर्स्ट नहीं होना चाहिए. तो अगर मेरा ये ईयर ड्रम है तो इसका यहाँ का प्रेशर और इसका यहाँ का प्रेशर ये इक्वलाइज्ड रहना चाहिए, ये इक्वलाइज्ड रहना चाहिए, सो दैट ये ईयर ड्रम बर्स्ट न हो जाए. अगर कोई फटाका फूटा जोर से, ऑलराइट, कोई क्रैकर बर्स्ट हुआ. And you were not audible in middle. Please, can you repeat? Yes. So that the pressure, which is the sound waves which are coming from outside, they, if they are very loud, if there is some cracker जो जोर से burst हुआ है, तो ये ear drum burst नहीं होना चाहिए. ear drum यहाँ अंदर अगर इतना ही pressure आया ये cavity में तो ये drum burst हो सकता है. So we need some outlet जो वो एक्स्ट्रा प्रेशर को बाहर लेके जाएगा ईयर से. बिकॉज यहाँ पूरा बोन है, ये पूरी बोनी कैविटी है. वी नीड वो बोन के बीच में से कोई एक आउटलेट जो ये एक्स्ट्रा प्रेशर को बाहर लेके जाएगा. दैट आउटलेट इज द यूस्टेशियन ट्यूब. यूस्टेशियन ट्यूब. This eustachian tube is the part of middle ear along with malleus incus stapes. मिडिल ईयर कैविटी से ये ट्यूब जाता है फैरिंक्स को MCQ. ये आउटलेट दिया हुआ है फॉर द फैरिंक्स टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द ड्रम. ड्रम के बाहर का और अंदर का प्रेशर इक्वलाइज रखने के लिए, सो दैट ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये ईयर ड्रम ये बर्स्ट नहीं होना चाहिए. वी आर हैविंग दिस अरेंजमेंट कि अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड हो जा रहा है बाहर से जो आया है, दिस वेरी लाउड साउंड, तो ये यहाँ से नलीफाई हो जाता है, ये यहाँ से चला जाता है फैरिंग्स को एंड इट नलीफाइज. बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम जोर से कोई फटाका सुनते हैं, हमारा कान बजता है तो हमारा माउथ ओपन हो जाता है. दैट इज़ बिकॉज दिस प्रेशर इज रिलीज्ड थ्रू द फैरिंग्स फ्रॉम आवर माउथ. We don't have to go to the details of that mechanism, but आप सोच के देखो ऐसा होता है. Okay, we don't even realize, but ऐसा होता है. थोड़ा सा हमारा माउथ ओपन हो जाता है उस टाइम पे एंड देन प्रेशर रिलीज हो जाता है. सो ये प्रेशर रिलीज होता है थ्रू द यूस्टेशियन ट्यूब. दिस प्रेशर इज रिलीज्ड थ्रू द यूस्टेशियन ट्यूब. अब मिडिल ईयर के कौन से पार्ट्स हैं आप लिखोगे मेरे साथ. मिडिल ईयर का फर्स्ट पार्ट है मेलियस, सेकेंड पार्ट है इनकस, थर्ड पार्ट है स्टेप्स एंड द फोर्थ पार्ट इज द यूस्टेशियन ट्यूब. मिडिल ईयर इज मेड अप ऑफ 3 ossicles and 2 joints along with this eustachian tube. अब साउंड वेव्स जो यहाँ पे आ रहे हैं, ईयर ड्रम के पास कहाँ से आए साउंड वेव्स, कौन लेके आया? Pinna and external auditory canal. पिना, फिर कनाल, फिर आए यहाँ पे ईयर ड्रम के पास. ईयर ड्रम से साउंड वेव्स जाएंगे, अभी देखो मेलियस को, मेलियस से जाएंगे इनकस में, इनकस से जाएंगे स्टेप्स में, और ये तीनों वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं. ये एक बंद कैविटी है जिसमें ये बोन्स प्रेजेंट हैं. ये तीनों ऑसिकल्स ये वाइब्रेट होंगे, ये एम्पलीफाई करेंगे साउंड को, उसकी इंटेंसिटी को यहाँ पे एम्पलीफाई कर देंगे, मैक्सिमम कर देंगे. सो ये काम होगा मिडिल ईयर कैविटी में, ये 3 ऑसिकल्स करेंगे. अगर ये साउंड बहुत ज़्यादा है जो एक्सटर्नल ईयर से आया है तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ये प्रेशर रिलीज़ करने के लिए देयर विल बी दिस ट्यूब which is called the eustachian tube, which is going to open into the pharynx. It's going to release this pressure in the pharynx.
सो हमारे एक्सटर्नल ईयर से मिडिल ईयर तक कैसे साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं ये हमने देखा है. यू विल राइट विथ मी. एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, just let me know if I'm not audible because now the electricity has gone at my place. Okay. इतना pathway लिखो अभी आप sound waves का. चलो, try, you can write it yourself and then when I'll write you correct it. Write the pathway of the sound waves from the pinna. चलो. The path which the sound waves are going to travel. First, your pinna. पिन्ना से आएंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस. यहाँ से आएंगे ईयर ड्रम. ईयर ड्रम से आएंगे मेलियस, इनकस, स्टेप्स. इनके साथ मैं साइड से ये बनाऊंगी यूस्टेशियन ट्यूब, indicating that if the pressure over here is too much, it's going to exit like this from the eustachian tube to the pharynx. Now you tell me, इनमें से external ear के parts कौन से हैं? Ma'am, Marius Incus Steps. Auditory matters on ear. External ear, yes. External ear is this. Pinna, external auditory meatus and eardrum. Middle ear के parts कौन से हैं? Malleus, Malleus, Incus and Steps. stapes and this eustachian tube. ठीक है? Ma'am, it is also the part of middle ear. Yes, middle ear cavity से ही ये opening रहती है जो eustachian tube follow करता है. So we consider it as a part of middle ear. All right. So पिन्ना से sound receive हुआ. हम अपना फ़ोन कहाँ पे लगाते हैं? ईयर्स पे लगाते हैं, पिन्ना पे लगाते हैं, बिकॉज वहीं से हमको मैक्सिमम सुनना है. वो ही कैरी करेगा हमारा साउंड और साउंड वेव्स बनाएगा जो हमारे ब्रेन के पास जाएंगे एंड वी कैन हियर इट. सो जब हम फ़ोन पे बात करते हैं हम फ़ोन पिन्ना पे लगाते हैं. जब हम अभी ऐसे ही सुन रहे हैं, आप मुझे मीटिंग में सुन रहे हो तो आपने फ़ोन कान पे नहीं लगाया है. यू कैन स्टिल हियर मी बिकॉज दोज waves, those sound waves are going to your ear. All right. और आपका बॉडी उसको एम्पलीफाई करके प्रोड्यूस कर रहा है साउंड सो दैट यू कैन हियर मी. सो पिन्ना इज गोइंग टू रिसीव इट, देन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, देन द ईयर ड्रम. ईयर ड्रम से पास होगा मेलियस, इनकस, स्टेप्स. दिस इज गोइंग टू बी द पाथवे ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर टू द मिडिल ईयर. Now I have to see the internal ear. Because the ear is divided into three parts, this is the first part, second part, and now we will see the third part, which is the inner ear or the internal ear. Now this is also a air filled cavity, external ear. Middle ear is also a air filled cavity. External ear is also a air filled cavity. Middle ear is also a air filled cavity. Now we will see the inner ear. Inner ear is a fluid filled cavity. Okay, now I want all of you to draw the structure of a jalebi. आप लोगों ने जलेबी खाई है तो उसका स्ट्रक्चर बनाओ. And tell me whether the jalebi is dry or it is filled with juice or the fluid. Filled with juice. Yes. चलो, स्ट्रक्चर क्या होगा जलेबी का? Circular. Okay, a better term to describe it? बोलो. Coil spiral. Yes, spiral or coil. So this यहाँ से मेरा steps खत्म हुआ था. This is my steps, my stirrup shaped. Okay.
ये मेरा स्टेप्स खत्म हुआ था, यहाँ से मेरा इंटरनल ईयर चालू होगा. सो इट्स गोइंग टू बी दिस स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर, जलेबी का स्ट्रक्चर. This is going to be my inner ear. This is the third part of my ear now. This is going to be my inner ear. It's going to be a coiled structure like this. जलेबी को याद रखेंगे तो हम ये भी याद रखेंगे कि inner ear ये fluid filled cavity रहेगी. It will be a fluid filled cavity. अब ऑल दिस वाइल जब मेलियस से इनकस से स्टेप्स हमारी वाइब्रेशंस पास हुई है, ये क्लोज्ड बोन्स से पास हुई है, तो यहाँ से भी एक ओवल स्ट्रक्चर रहेगा जो ये लेके जाएगा. नाउ दिस ट्यूब इज ऑल डबल्ड. ओके, एक ट्यूब बनाना है मुझे, एक पाइप बनाना है, तो वो डबल रहेगा. डबल रहेगा वो ट्यूब. इमेजिन करो कि आपके घर पे जो पाइप है उसको आप अराउंड योर हैंड आप लपेट रहे हो उसको. सो इट्स गोइंग टू बी डबल स्ट्रक्चर. इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज गोइंग टू बी फिल्ड विथ फ्लूइड. सो इनर ईयर इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी. लेकिन ये ट्यूब बोन से बना हुआ रहता है. इसके जो आउटर मेम्ब्रेन्स रहते हैं ये बोन से रहते हैं, और इसके अंदर एक सॉफ्ट मेम्ब्रेनस पार्ट रहता है. मतलब कि कैसे, ये मेरा ट्यूब है. अगर ये कॉइल को हम ओपन करेंगे, ये कॉइल स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. दिस इज माई वन पार्ट ऑफ माई पाइप नाउ, माई ट्यूब. इट्स गोइंग टू हैव दिस, एंड बीच में एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रहेगा. सो ये बाहर का बोनी पार्ट है, सॉफ्ट बोनी पार्ट है जो कॉइल हुआ है, और उसके अंदर ये सॉफ्ट मेम्ब्रेनस पार्ट रहेगा. सो दिस पार्ट इज बोनी, दिस पार्ट इज बोनी, एंड दिस पार्ट इज मेम्ब्रेनस. और ये तीनों canals, now it is forming 3 canals. This is the upper canal, this is the middle canal, this is the lower canal. 3 अलग अलग कनाल बन रहे हैं. ये जो बोनी पार्ट है, ये जो बोनी कनाल है, यहाँ पे पेरीलिम्फ रहता है. पेरीलिम्फ, यहाँ पे भी पेरीलिम्फ रहेगा, और बीच में रहता है एंडोलिम्फ. ये बीच में रहता है एंडोलिम्फ. इसको ऐसे ही याद रखेंगे कि पेरीफेरी मीन्स बाहर का पोर्शन, सर्कमफेरेंस. सो पेरीफेरी पे पेरीलिम्फ रहेगा. लिम्फ इज व्हाट? इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इट इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी. पेरीलिम्फ मीन्स बाहर का फ्लूइड, एंडोलिम्फ मीन्स अंदर का फ्लूइड. ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर जब मैं ओपन करूँगी, आई एम गोइंग टू गेट, ये एक एक कॉइल के अंदर हमको ये 3 कनाल्स मिलेंगे. सो दिस पार्ट, दिस कॉइल्ड पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर, इट इज कॉल्ड कॉक्लिया. मैं अभी पिक्चर्स दिखाऊंगी तो थोड़ा और क्लियर होगा कॉक्लिया के बारे में. ये कॉइल्ड पार्ट जब हम ओपन करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट 3 कनाल्स लाइक दिस. नाउ यू टेल मी कि ये अगर ओवल विंडो है तो यहाँ पे कौन सा बोन अटैच्ड होगा? बोलो. स्टेप्स. ये स्टेप्स अटैच्ड है. ये बंद रहेगा, और यहाँ से फिर से एक और विंडो रहे, एक और ओपनिंग रहेगी. ये वाली ओपनिंग को बोलते हैं राउंड विंडो. और ये वाली ओपनिंग को बोलते हैं ओवल विंडो. ओवल विंडो को स्टेप्स अटैच्ड है, और राउंड विंडो आके ओपन होता है इंटरनल ईयर में. यहाँ पे कौन सा पार्ट होगा मेरे ईयर का? मिडिल ईयर, सॉरी, मिडिल ईयर में आके ओपन होता है.
चलो देखते हैं कुछ डायग्राम्स सो दैट ये बेटर समझेगा। मैम ये राउंड विंडो को कुछ अटैच नहीं है क्या इधर से नहीं मिडल ईयर का? नहीं, वो सिर्फ ओपन होता है मिडिल ईयर में। ओके। सो कॉक्लिया के स्ट्रक्चर में यू हैव टू रिमेंबर दैट जलेबी लाइक स्ट्रक्चर and it is fluid filled. Actually cochlea is the Greek word for snail like. अब imagine करके देखो snail का structure कैसा रहता है. If you want to draw a snail, you're going to again do these coiled like structures. Okay, देखा है सबने snail? यस मैम। हाँ, so you understand कि snail like क्या होगा, ऐसा ही coiled structure होगा. See this. ये क्या है? ये मेरा एक्सटर्नल साइड है. ओके, तो दिस इज माई ईयर ड्रम. ईयर ड्रम को देखो, ये मेलियस हैमर शेप्ड, ये इनकस एनविल शेप्ड, ये स्टेप्स स्टाइरप शेप. ये मेरी मिडिल ईयर कैविटी है, ये पिंक कलर की, ये एयर फिल्ड कैविटी है. और यहाँ से ओपनिंग है ये यूस्टेशियन ट्यूब विच विल गो टू द फैरिंग्स. स्टेप्स यहाँ से अटैच्ड है ओवल विंडो को, और ये पार्ट है मेरा कॉक्लिया. ये कॉइल्ड पार्ट है मेरा कॉक्लिया. तो ये जो कॉइल्ड ट्यूब है, it is going to be divided into 3 canals which run parallel to each other. 3 कनाल जो एक दूसरे को पैरेलल चलते हैं. देखो, बाहर वाला बोनी रहेगा, अंदर वाला बोनी रहेगा, लेकिन बीच वाला मेम्ब्रेनस रहेगा. अपर कनाल बोनी, लोअर कनाल बोनी, बीच वाला मेम्ब्रेनस. बाहर रहेगा पेरीलिम्फ, लोअर में रहेगा पेरीलिम्फ, बीच में रहेगा एंडोलिम्फ. अपर कनाल और लोअर कनाल ये वाले पॉइंट पे एक दूसरे से मिलते हैं. देखो, यहाँ से ये पेरीलिम्फ और ये कंटिन्यूशन है यहाँ. सो ये जो एंड पॉइंट रहता है मेरे कॉइलिंग का, वहाँ पे ये मिलेंगे अपर कनाल और लोअर कनाल. सी, एंड ये नीचे वाला कनाल यहाँ पे जहाँ पे आके ओपन होगा, ये पूरा कनाल है. ओके, सो ये मेरा पूरा कॉक्लिया का स्ट्रक्चर है. इसका जो अपर कनाल है ये स्टेप्स से एसोसिएटेड है. जो लोअर कनाल पे जो एक विंडो है, ये ओपन रहता है मिडिल ईयर में. देखो, ये ओपन रहता है मिडिल ईयर में. See this. This is how we do the 3 canals in the coiled part of the cochlea. ये मेरा स्टेप्स है, तो ये ओवल विंडो है. ये मेरा ऊपर का कनाल है बोनी, ये मेरा नीचे का कनाल है बोनी, और ये मेरा बीच का है मेम्ब्रेनस पार्ट. ऊपर वाले को बोलते हैं स्कैला वेस्टिब्युलाई, नीचे वाले को बोलते हैं स्कैला टिम्पैनी, बीच वाला मिडिल है तो मीडिया. यहाँ पे आपको याद सिर्फ वेस्टिब्युलाई और टिम्पैनी रखना है कि ऊपर वाला कौन सा है और नीचे वाला कौन सा है. सो स्टेप्स के साथ आप स्कैला वेस्टिब्यूली याद रखोगे, बिकॉज स्टेप्स यहाँ पे ओपन होगा थ्रू द ओवल विंडो. MCQ, स्टेप्स इज गोइंग टू ओपन वेयर, इन विच कैनाल? स्कैला वेस्टिब्युलाई, थ्रू द ओवल विंडो. स्कैला वेस्टिब्युली और स्कैला टिम्पैनी, इसमें रहेगा पेरीलिम्फ. पेरीलिम्फ पहले समझ लो, ये स्ट्रक्चर बना लेंगे बाद में. ये स्कैला वेस्टिब्युली और स्कैला टिम्पैनी जहाँ पे मिलते हैं, ये देखो, ये मीटिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं हेलिकोट्रेमा. ये सब स्ट्रक्चर्स आपको याद ही रखने पड़ेंगे. हेलिकोट्रेमा
is where the scala vestibuli and the scala tympani are meeting. See this point. Scala media is going to be the inner membranous part of this bony canal, जिसको बोलेंगे scala media. See this. ये ईयर ड्रम है, देखो हमने ये ड्राइंग अलग से की थी. ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटिस, ये ईयर ड्रम, यहाँ पे पिन आएगा. दिस इज माई मिडिल ईयर कैविटी. सी दिस नाउ. ये मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स. And this is what which is going through the middle ear cavity? Eustachian tube. Eustachian tube. Stapes attached है scala vestibuli को. देखो ऊपर ओवल विंडो बोलते हैं इसको. So sound waves जो ट्रैवल हुए थे पिन्ना से एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटिस से ईयर ड्रम से मेलियस से इनकस से स्टेप्स से ये वाले फ्लूइड फिल्ड पैसेज में जाएंगे विच इज द स्कैला वेस्टिबुली. यहाँ से ट्रैवल होंगे स्कैला टिम्पैनी. एंड बिकॉज ये पूरा फ्लूइड मूव हो रहा है, अब इमेजिन करो एक बीच पे जब वेव्स आती हैं तो पानी पूरा मूव होता है. ये पूरा पानी मूव होगा. जब आपको कुछ साउंड सुनाई दे रहा है और यहाँ से साउंड वेव्स ट्रैवल हो रहे हैं, यहाँ पे वाइब्रेशन मिला है, यहाँ पे वाइब्रेशन पास ऑन हुआ है, ये पानी पूरा मूव होगा. जब आप सो रहे हो, जब आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा. यहाँ आप शांति से बैठे हो, आपके बाजू में कोई नहीं बैठा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है. सो दिस इज गोइंग टू बी एट रेस्ट. ये फ्लूइड में कुछ भी मूवमेंट नहीं रहेगी. बट जब यहाँ से वाइब्रेशन आ रहा है तो फिर ये पानी में पूरे वाइब्रेशंस आएंगे. एंड ये मूवमेंट, ये पानी की मूवमेंट की वजह से ये एंडोलिम्फ में भी मूवमेंट होती है. ये पूरा पानी यहाँ का वाइब्रेट होगा, उसमें वेव्स आएगी. साउंड वेव्स एंडोलिम्फ में नहीं जाता. एंडोलिम्फ में डायरेक्टली नहीं जाते हैं बिकॉज डायरेक्टली वो पहले स्कैला वेस्टिबुली में जा रहे हैं, यहाँ पे अटैचमेंट. ओके, बट बिकॉज दिस कंप्लीट फ्लूइड इज मूविंग, इवन द एंडोलिम्फ का फ्लूइड मूव्स, स्कैला मीडिया का फ्लूइड ऑल्सो मूव्स, बट जाते सबसे पहले स्कैला वेस्टिबुली में है. एंड फिर से यहाँ से जो एक्सेस रहता है वो यहाँ आता है मिडिल ईयर कैविटी में, यहाँ से वापस चला जाता है यूस्टेशियन ट्यूब को. Because we don't want these internal structures of the ear to get destroyed, get damaged by loud sound, तो ये यहाँ से पास ऑन होके वापस यहाँ चला जाएगा यूस्टेशियन ट्यूब में. बट इसने ये फ्लूइड की पूरी मूवमेंट कराई है यहाँ पे. ये फ्लूइड की मूवमेंट की वजह से हमको कोई भी आवाज़ सुनाई देता है. हम देखेंगे अभी ये जो एक्चुअल रिसेप्टर्स रहते हैं, जो साउंड वेव्स को रिसीव करते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं स्कैला मीडिया में. एक्चुअल रिसेप्टर सेल्स जो रहते हैं, जैसे आई में रॉड्स और कोन्स रेटिना में प्रेजेंट थे, बाहर का पूरे स्ट्रक्चर में कोई भी फोटो रिसेप्टर्स नहीं थे, वैसे ही ईयर में ये पूरे स्ट्रक्चर में एक्चुअल फोनो रिसेप्टर्स और द ऑडिटरी रिसेप्टर्स दे आर प्रेजेंट इन द स्कैला मीडिया. स्कैला मीडिया में प्रेजेंट रहेंगे. ये पॉइंट जहाँ पे स्कैला टिम्पैनी और स्कैला वेस्टिबुली ऊपर का और स्कैला टिम्पैनी ये मिलते हैं, ये होता है हेलिकोट्रेमा. हेलिकोट्रेमा इट इज मीटिंग पॉइंट ओवर हियर. ये देखो अभी कॉक्लिया का स्ट्रक्चर ऐसे बाहर से देखा तो आपको ये बोनी कनाल ही दिखेंगे जो कॉइल्ड हैं. लेकिन अगर मैं ये बोन की लेयर हटा दूं और आपको दिखाऊं तो ये एक एक कनाल अंदर से 3 कनाल्स का बना हुआ है. देखो ऊपर वाला स्कैला वेस्टिबुली, नीचे वाला स्कैला टिम्पैनी, और बीच वाला ये जो लाइट पर्पल कलर है दैट इज स्कैला मीडिया. सो ये कॉइल्ड ट्यूब के अंदर देख रहे हैं हम.
इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन लूंगी तो मुझे 3 सर्कल्स मिलेंगे ना अलग अलग। एक सर्कल स्कैला वेस्टिबुली, एक सर्कल स्कैला मीडिया, एक सर्कल स्कैला टिम्पैनी। आर यू गेटिंग मी? 3 सर्कल कैसे मिलेंगे बोलो। इसको कट करना है यहाँ पे, इसको कट करेंगे यहाँ पे तो मुझे 3 सर्कल्स मिलेंगे। देखो ऐसे, ऊपर वाला स्कैला वेस्टिबुली, बीच वाला स्कैला मीडिया, नीचे वाला स्कैला टिम्पैनी। मैंने क्या किया है, सिर्फ चाकू लेके यहाँ पे कट मारा है और हम ऊपर से ये स्ट्रक्चर देखेंगे फिर ट्रांसवर्स सेक्शन, तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ऊपर वाला स्कैला वेस्टिबुली, बीच वाला स्कैला मीडिया, नीचे वाला स्कैला टिम्पैनी। ये बोनी कनाल्स हैं बाहर वाले जो हैं, अंदर वाला मेम्ब्रेनस कनाल है। एक ओवल विंडो रहेगा जहाँ से ये जाएगा। अब ये पूरा कॉइल्ड है देखो, तो ये ऊपर वाला ओवल विंडो के साइड वाला स्कैला वेस्टिबुली होगा। राउंड विंडो, यहाँ पे आर कट हो गया है, राउंड विंडो के साइड वाला स्कैला टिम्पैनी होगा। और इसके बीच वाला जो कनाल होगा वो होगा स्कैला मीडिया। चलो, इतना क्लियर हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर? यस किसी यस को मैम। कुछ डाउट इतने पोर्शन में? नो मैम। ये देखो, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। if I'll cut it from the center, I am going to see these 3 structures, एक स्कैला टिम्पैनी, एक स्कैला वेस्टिबुली और एक स्कैला मीडिया। I'll see 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अगर हम ऐसे ऊपर से देखेंगे वो ट्रांसवर्स सेक्शन कट करने के बाद। सी दिस। और स्टेप्स के साथ ये ओवल विंडो रहेगा मेरा, जो ये पाइप पे आ रहा है, और ये वापस ये जो राउंड विंडो है ये मिडिल ईयर में ओपन होगा। So now quickly we have done these 3 parts of the ear. This is my external ear. ये पूरा जो brown part है वो external ear है, along with this tympanic membrane. See this pinna, then you have the external auditory canal, then you have the eardrum or the tympanic membrane. This forms my external ear. First part. This is my middle ear, this pink thing, and this eustachian tube which is going from my middle ear to the pharynx. This is going to be made up of 3 bones, malleus, incus and stapes. And then this coiled portion is my inner ear, which is also called the cochlea. This is going to be made of 3 canals which run parallel to each other. और ये coiled structure रहता है, हम थोड़ा सा ये coiling खोल के उसको study कर रहे हैं। So ये स्कैला वेस्टिबुलाई से आता है अंदर साउंड वेव्स। साउंड वेव जो यहाँ से आ रही है पिन्ना से, एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस से, ईयर ड्रम से मेलियस, ये एरोस फॉलो करो, मेलियस से इनकस, इनकस से स्टेप्स, स्टेप्स से स्कैला वेस्टिबुली और फिर ये स्कैला टिम्पैनी। बट स्कैला वेस्टिबुली से देखो ये एरोस स्कैला मीडिया को भी आ रहे हैं। तो ये पेरीलिम्फ में तो मूवमेंट आता ही है, एंडोलिम्फ में भी मूवमेंट आता है। This is the inner ear. This cochlea, it comes from the word of this snail. Okay, Greek में snail को cochleos ऐसा कुछ बोलते हैं. So this cochlea word is derived from this structure of the snail. देखो, ठीक है. अब कंबाइन करके ये पूरा स्ट्रक्चर एक बार बनाते हैं और फिर मीटिंग एंड करते हैं. We'll combine the external ear, middle ear and internal ear and draw the structure. Internal ear में कॉक्लिया के साथ साथ ये वेस्टिब्यूलर apparatus भी आता है. इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हमको ये देख लेने दो कॉक्लिया तक का पार्ट. चलो, ये वाली ड्राइंग I am doing it, you do it with me and then we end the meeting.
हैवी हो रहा है, ये पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए. See now, can you see the board? Yes, ma'am. Chalo. I'm doing the pinna first. External auditory canal. And my eardrum. चलो क्विकली लेबल करेंगे. पिना, एक्सटर्नल ऑडिटरी canal, eardrum. This forms my external ear. Simple drawing. Then from the eardrum you will have the malleus, the incus, and the stapes. This is my malleus, incus, stapes. And there will be a tube which will go out from this medulla. So this will be my eustachian tube. It will open to the pharynx. This forms my middle ear. अब स्टेप से बनाएंगे एक जलेबी लाइक स्ट्रक्चर, बट हियर आई विल बी डूइंग इट लाइक दिस बिकॉज अंडरस्टैंडिंग के लिए यही चाहिए हमको. अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको यही चाहिए. ये होगा ओवल विंडो, ये होगा राउंड विंडो, ये होगा स्केला वेस्टिब्यूली, नीचे वाला स्केला टिम्पैनी और बीच वाला स्केला मीडिया. सो ये हो गया हमारे ईयर का स्ट्रक्चर कंप्लीट. दिस पार्ट इज द कॉक्लिया. इसका अगर नाम लिखना है तो हम लिखेंगे कॉक्लिया. This will be my inner ear. This will be my inner ear. कॉक्लिया के साथ साथ यहाँ पे आते हैं 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स जो होते हैं वेस्टिब्यूलर apparatus. We'll see about these semicircular canals afterwards. Vestibular apparatus. These are concerned with balance. Cochlea is concerned with hearing. Vestibular apparatus is concerned with balance.
सो ये दोनों पार्ट होंगे इनर ईयर के। ये एयर फिल्ड कैविटी है, ये भी एयर फिल्ड कैविटी है, पर ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। There's going to be fluid completely over here. Scala vestibuli and scala tympani is going to have perilymph. Scala media is going to have endolymph. If you are done with the diagram, एक बार अभी last point, we are going to trace the passage of the sound waves. चलो, sound waves आएंगे पिना से, फिर कहाँ जाएंगे? External auditory meatus. Yes? External auditory meatus से eardrum, eardrum से malleus, malleus से incus, incus से stapes, stapes से scala vestibuli, scala tympani और scala media. हमारे जो एक्चुअल रिसेप्टर सेल्स हैं फॉर हियरिंग, दे आर लोकेटेड हियर इन द स्कैला मीडिया. कल वो स्ट्रक्चर देखेंगे रिसेप्टर्स का, और ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं कि साउंड वेव्स यहाँ तक कैसे आए हैं. कल देखेंगे कि ये रिसेप्टर्स कैसे स्टिम्युलेट होके इम्पल्स बनाते हैं, और फिर यहाँ से एक नर्व जाती है बाहर जो लेके जाती है वो हियरिंग की इम्पल्स. ये डायग्राम बनाने में किसी को भी कुछ भी डिफिकल्टी हो रही है तो अभी पूछो. सिर्फ जो 3 अलग अलग पार्ट्स हमने बनाए थे, हमने उनको अभी कंबाइन कर दिया है. देखो, so same thing is over here. See, ये external ear, then this is the middle ear, and this is the inner ear. Parts of the ear आपको clearly समझ में आने चाहिए by the end of this lecture. एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक्सटर्नल के कौन से पार्ट्स हैं, मिडिल के कौन से पार्ट्स हैं और इनर के कौन से पार्ट्स हैं. इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. मेलियस इनकस स्टेप्स का शेप क्या है, इनके जॉइंट्स क्या क्या होंगे, इनका नंबर कितना होगा इन द बॉडी. एंड देन ये स्कैला वेस्टिबुली, स्कैला टिम्पैनी और स्कैला मीडिया. Helicotrema is the point where these two will meet. चलो, किसी को कुछ डाउट है तो बोलो बेटा, अदरवाइज हम कल कंटिन्यू करते हैं.